नहीं किया गया। तो देखिए, आज सुबह ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित यहां पर किया। 20 मिनट के संबोधन में सवाल को और ज्यादा गहरा कर दिया गया है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या अब और ज्यादा तेज यहां पर होने वाली है। अपने संबोधन की शुरुआत में ही ट्रंप ने जीत का दावा भी कर दिया और कहा कि पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और भारी जीत हासिल की है। ऐसी जीत जैसी बहुत कम लोगों ने पहले यहां पर देखी होगी। और ट्रंप ने संबोधन में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना भी तबाह हो चुकी है, उनके ज्यादातर नेताओं की युद्ध में मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कमांड और कंट्रोल लगातार तबाह किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता को भारी कमी आई है और ईरान में हथियारों की फैक्ट्री और रॉकेट लॉन्चर को खत्म किया जा रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों सऊदी अरब, कतर, UAE, इजराइल, कुवैत और बहरीन को भी धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि वे बहुत अच्छे रहे हैं और हम उन्हें किसी भी तरह के नुकसान को नहीं पहुंचने देंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's Navy, which is now absolutely destroyed, hurting their Air Force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Remember, because of our Drill Baby Drill program, America has plenty of gas. We have so much gas. Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet without even discussing the millions of barrels that we're getting from Venezuela. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. And that number will soon be substantially higher than that. There's no country like us anywhere in the world. तो ट्रंप को आपने यहां पर सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, जहां पर जंग पर ट्रंप के बयान के बाद अब कच्चे तेल के दाम यहां पर बढ़ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $106 प्रति बैरल यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, इससे पहले भी आपने बहुत दफा यहां पर सुना होगा कि ट्रंप कई दफा अपने बयान उनने बदले और कई दफा फ्लक्चुएशन यहां पर तेल के दामों में देखा भी गया। अब तेल के दाम फिर से यहां पर बढ़े हैं और अब जो कीमत, उनकी ताजा कीमत यहां पर हो चुकी है $106 प्रति बैरल। और देखिए, सब यही कह रहे हैं कि लगातार तेल को भी वो फ्लक्चुएट करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा तेल में यहां पर इन्वेस्ट करें, तेल खरीदें। और अब तो ट्रंप ने सीधे कह दिया कि आपको अगर तेल खरीदना है तो आप हमसे खरीदिए, आपको क्या मतलब है हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद है तो। और अगर आप चाहते हैं तो रिस्क लेकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भी गुजरकर अपना वहां से जहाज निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, तेल के दामों में ही यहां पर सबसे ज्यादा उछाल लगातार देखने को मिली थी। और इससे पहले हमने देखा भी, यहां पर पत्रकारों का पूरा एक गुट गया था बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां पर फ्लीट्स में बाकायदा वहां वॉरशिप्स खड़े हैं। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपने देशों तक पहुंचे, लेकिन अब भी वो संभव नहीं है।
लगातार इस पैनल डिस्कशन को हम देखिए यहाँ पर जारी रखेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। कर्नल दानवीर जी हमारे साथ हैं, दीपक बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के सिवाज जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र वांगू हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज भी हमारे की एम्बेसी से लगातार हम तक यहाँ पर सारी अपडेट पहुंचा रहे हैं। नीरज, सबसे पहले सवाल आप ही से, यहाँ पर जिस तरीके का संबोधन यहाँ पर किया गया ट्रंप की ओर से, देखिए एक बात तो उन्होंने साफ कही, कर्नल दानवीर से भी इससे पहले हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अमेरिकी पेट्रियोटिज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, देशभक्ति की जब बात आएगी ना वो लड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक बात यहां पर जरूर साफ की कि अमेरिका के लिए ही लड़ रहे हैं, आपके लिए ही लड़ा जा रहा है, अमेरिकी लोगों के लिए ही लड़ा जा रहा है, यानी पेट्रियोटिज्म जगाने की कोशिश एक तरीके से ट्रंप ने यहां पर कही। देखिए, पेट्रियोटिज्म तो जगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जो कुछ लोग जगे वो टाइम स्क्वायर पर जाकर और एंटी वॉर उन्होंने प्रदर्शन किए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा और यहाँ पे लड़ाई चलेगी और अमेरिकन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ये अर्थशास्त्री ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक आक्रोश तो है ही है और उसी चीज़ को प्लिकेट करना, उनको समझाना, उसी दिशा में ये स्पीच ज़्यादा नज़र आया। और बात आप सही कह रही हैं कि पेट्रियोटिज्म को बड़ा उकसाने की या उसको हवा देने की जो बात महसूस हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे जहां पर प्रदर्शन हुआ था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ, जहां पर जंग का एक तरह से विरोध किया जा रहा था, लेकिन क्या देशभक्ति जगाने में कामयाब रह गए डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच में? हम इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं, हमने बहुत सारे बिंदुओं पर ऑलरेडी बात की है, जिनमें वहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस की बात है, ऑयल की बात है और पूरी स्ट्रेटेजी की बात है जिसके ऊपर ट्रंप फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ अशोक जी भी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा, आप इस पूरे स्पीच को किस नजर से देख रहे हैं? आपको कुछ नया नजर आया कि जो ट्रंप आज बोलकर गए हैं लगभग 20 मिनट में, क्या दुनिया को कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि क्या होने जा रहा? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे कुछ खास नया इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। वो अपना नज़रिया पेश कर रहे थे अपने देशवासियों के सामने, क्योंकि देशवासियों के सामने जो इनका नैरेटिव है वो बड़ा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो ईरान के विरुद्ध वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में उनकी कुछ सफलता मिली थी, परंतु उसके बाद जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको करने में, पाने में वो सफल नहीं रहे हैं। तो उनका इरादा यही था ये बताने का, जो हम अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हमने सेट किए थे, हम काफ़ी तेज़ी तक उससे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मेरे विचार से जो उन्होंने नई कही, क्योंकि बहुत दुनिया में ये विचार किया जा रहा था, जो आज सुबह हमारे समय के अनुसार, अमेरिका के समय के अनुसार कल शाम को, जो वो वहाँ पर सीज़ फायर का कोई ना कोई ऐलान कर देंगे या कंडीशनल सीज़ फायर या किसी प्रकार का सीज़ फायर, जिससे कि मार्केट्स में थोड़ी मंदी आए। मार्केट्स जो इतने उछाल रहे हैं एनर्जी वगैरह में, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जो मैं 2-3 सप्ताह तक हमारा युद्ध जो है उनके विरुद्ध चलता रहेगा और तेज़ी से चलेगा, और इसलिए आप देख रहे हैं जो ये तेल के दाम बढ़े हैं वो उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि विश्व में अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो उनके जी। गैस स्टेशन पर भी गैस के दाम बढ़ते हैं, जो कि उनकी अपनी इन्फ्लेशन के लिए ठीक नहीं है। बेशक अशोक जी, हर तरफ इसका असर पड़ता हुआ तो देखिए यहाँ पर दिखेगा, खासतौर पर अमेरिका में बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर ट्रंप के भाषण के दौरान ईरान का इजरायल पर अटैक भी हुआ। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी और ईरान का इजरायल में भारी तबाही का दावा भी यहाँ पर किया गया। देखिए, ठीक उसी वक्त हुआ जब ट्रंप भाषण दे रहे थे, सुबह 6:30 बजे के आसपास का ये वाकया हम आपको बता रहे हैं। ईरान उस वक्त अटैक कर रहा था इजरायल पर, यानी ईरान का तो साफ संदेश देखिए अटैक के जरिए यहाँ पर है कि हम तो रुकेंगे नहीं, आप अगर रुकना भी चाहें तो हमसे बात कीजिए, हमसे डील कीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमें दीजिए, हमें पूरा कंट्रोल उस पर चाहिए, और अगर वहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज करना है तो केवल ईरानियन करेंसी पर ही यहां पर होगा। लगातार नीरज भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कहेंगे, अब किस ओर जाता हुआ आपको युद्ध यहां पर दिखेगा, और क्या ईरान की भाषा में कुछ बदलाव आपको दिखेगा या उसी तरीके से और मजबूत तरीके से वो रिटेलिएट करेंगे? शिवानी, देखिए, ईरान की भाषा में तब तक कोई बदलाव नहीं दिखेगा जब तक अमेरिका और इजरायल की तरफ से ये सुनिश्चित न किया जाए कि आने वाले वक्त में आप युद्ध को बढ़ाएंगे, तभी कोई डील होगी या लगता है कि ये संघर्ष विराम होगा। एक बात जो बार बार हम लोग भूल रहे हैं कि बेन्यामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायल के
के प्रधानमंत्री हैं, उनका रोल एक अहम है और अमेरिका और ईरान पे हम फोकस है, लेकिन युद्ध को लंबा खींचने में बेंयामिन नेतन्याहू की एक बड़ी भूमिका है। देखिए, बेंयामिन नेतन्याहू की एक खासियत है कि वो ट्रंप को बार बार समझाने में कामयाब हो जाते हैं। पिछली बार भी अमेरिका ने जो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जो हमला किया था, और इस बार भी युद्ध की शुरुआत करने में बेंयामिन नेतन्याहू की भूमिका बड़ी है। और मुझे लगता है 2 से 3 हफ्तों का जो वक्त लिया है ट्रंप ने, आगे भी बढ़ा सकते। वो कहीं ना कहीं इजराइल से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत लिया गया है कि आने वाले वक्त में चाहे लेबनान में हमले जारी हैं इजराइल के, या दूसरी तरफ ईरान में जो हमले जारी हैं, तो उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। और इसके लिए बार बार ट्रंप वक्त ले रहे हैं। ट्रंप की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी और मकसद भी होंगे, लेकिन एक अहम बात साफ है कि ट्रंप चाहते हैं कि 2-3 हफ्तों तक उस इलाके में कंट्रोल रहे। और लेकिन 2-3 हफ्ते तो वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा, आज की तारीख में तो नहीं कहा जा सकता। चलिए, एक बड़ा सवाल तो जरूर है कि क्या जंग खत्म हो जाएगी अगले 2-3 हफ्तों में? क्या वाकई इतनी आसान नजर आ रही है कि तैयारी करने में कई महीने लग जाए और 2-3 हफ्तों में सब कुछ वहां पर समेट कर वापस आ जाएं? AK स्वैत सर जुड़े हुए हैं। स्वैत सर, मेरा यह सवाल है, आपको लगता है कि टाइमिंग जानबूझकर चुनी गई? क्योंकि दुनिया को पता था कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे ट्रंप आकर संबोधन करेंगे, और उस टाइम को ही चुना गया मिसाइल हमलों के लिए। क्या यह भी एक रणनीति का हिस्सा या जवाब कहा जाए? मैं कह रहा था कि ईरान और IRGC की कोई स्टेटमेंट आती है, हमारी नजर रहेगी। क्या यह वही समझा है कि जवाब है? AK शिवाज जी, जी, शिवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ गौरव, देखो एक बात तो है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान पलटवार कर रहा है, और ईरान पलटवार बड़े इफेक्टिव है इस बार। अगर आप देखें कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 5 लेयर का है। आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद आपका एरो सिस्टम भी है, थार्ड और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम भी कहीं ना कहीं लगा रखा है। मगर इस बार जो हमले किए हैं ईरान ने इजराइल पे, वो सटीक रहे। 10 से 15% उसकी मिसाइलें, रॉकेट जो हैं वो घातक सिद्ध हुई हैं इजराइल में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान की जो रॉकेट और मिसाइल की कैपेबिलिटी है वो कम हुई है 30 से 40%, मगर उसके पास अभी भी जमावड़ा है। और इसीलिए कहते हैं कि ईरान लंबा लड़ सकता है, और ईरान ने सरप्राइज 2-3 जगह से किया है। एक तो इसको एसिमेट्रिक वॉर बना दिया है, स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया है, और मिडिल ईस्ट में जितनी ये कंट्री थी जहां बेसिस थी अमेरिका की, सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन, बहरान, कुवैत, वहां पर हमले जी। किए हैं। उनके एनर्जी सेक्टर, उनका टूरिज्म खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ईरान को सोचते हैं कि कहीं वो जल्दी ही हाथ खड़े कर देगा जैसे अमेरिका ने सोचा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान जी। लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इसने IRGC जो ज्यादा रेडिकल हैं उनके पास कंट्रोल आ गया है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज हुई है, जो नए लीडर आए हैं वो ज्यादा मानते हैं, और वो एक प्रकार जी। से नए विचार के हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ईरान के अंदर अभी कंट्रोल IRGC के पास है। और चाहे वो मसूद पेजिशकियान जो प्रेसिडेंट हैं, या अब्बास आरागाची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो जी। मुझे लगता है कि ये सोचना कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी या ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ये शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल रॉकेट का अभी भी बहुत जमावड़ा है। दूसरा, उसने जी। स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया। आज जो अगर ऐसा ही है, अमेरिका सबसे बड़ी नेवल पावर है, तो वो खोल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि उसको मालूम है अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो हैवी कैजुअलिटी होगी, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। तो इसलिए उन्होंने पलड़ा झाड़ दिया। उसने बोला हमने तो कोई लेना देना है नहीं, हम तो ऑयल लेते नहीं, जो ऑयल लेती कंट्री वो करें। और एक यूरोप नेटो कंट्री से वो बहुत परेशान है, क्योंकि नेटो कंट्री कोई भी इस लड़ाई के अंदर नहीं आया। उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ वॉर ऑफ नेटो, ना यूरोप का लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है अमेरिका की भी नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई थी। और बात आ रही कि ये 2-3 वीक के अंदर क्या वो निकलने की कोशिश, देखो तीनों बड़े अलग अलग पेज में। अमेरिका ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, और इजराइल इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। मगर ये जो सऊदी, UAE हैं, ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका जल्दी निकले। उनको लगता है कि अभी भी ईरान के पास बहुत ज्यादा ताकत और कैपेबिलिटी है। अगर अमेरिका वहां से निकल गया तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए
कि अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इशारा नहीं किया कि 2-3 वीक्स के अंदर हम ये लड़ाई खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को एक प्रकार जीत रहे हैं और अभी तक हमने जीत प्राप्त की है और हम ईरान को स्टोन एज की तरफ ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मैसेज पास कर रहे हैं डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि हमारी विक्ट्री है और जी। पूरा देश कट्टर है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक के अंदर आप देखें अप्रूवल रेटिंग कम हो रही थी। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर। एक तरीके से शिवाजी जी मजबूरी हो गई अब ट्रंप की वहां पर बने रहना, क्योंकि सारे अरब नेशंस पर जो भरोसा अब तक था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ दिख रहा है और वो जानते हैं कि तेल इन्हीं के पास है, उन्हीं से उनको तेल मिलेगा। शैलेंद्र, आप क्या कहेंगे? बहुत स्मार्ट खेलता है ईरान। ईरान जानता था, ईरान ने खुद को बहुत मजबूत किया, दिखाया नहीं लेकिन बहुत मजबूत किया अंदर खाने। उसने हुथियों को खड़ा किया, उसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, इराक में छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स को खड़ा किया, हमास को आपने देखा किस तरीके से वहां फंडिंग यहां पर दी है और इजरायल को घेरा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका हमला करता है तो ऐसा हो सकता है वो इजरायल पर बहुत दनादन कई हमले करे और सारा ध्यान अमेरिका का सिर्फ इजरायल पर आकर टिक जाएगा। देखिए, जो अमेरिकी रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो भी ये मान रही है कि ईरान इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ईरान ने जिस तरह से जो नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया, ईरान ने यहाँ तक दावा किया कि किसी सिविलियन की मौत इसमें नहीं हुई है क्योंकि हमने अपने पड़ोसी देशों को टारगेट नहीं किया है। और वहीं आज भी हम ये देख पा रहे हैं कि ईरान की तरफ से लगातार जो रिटेलिएशन है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में जो अमेरिकन मूव्स है उसको लगातार ईरान भी जवाब तो दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो सीधा अमेरिका पर टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि उतनी रेंज उनके पास नहीं है। लेकिन